of the chapter. Okay, beta, we are going to start with the second part of the chapter now, that is again telling us about the importance of music in our life and how it is very important from the very beginning, from the very past time only. The music is having a great role in our lives. There is a picture given to you again, and the title of your second part is The Shehnai of Bismillah Khan. Anyone who has heard the name of Bismillah Khan? Anyone who can tell who is Bismillah Khan? Yes? No one? आपने कभी नाम सुना है ये? Raise your hand and tell if you have heard this name. किसने नहीं सुना बिस्मिल्लाह खान के बारे में? ग्रेट म्यूजिशियन है हमारे, शहनाई वादन के. कभी नहीं सुना? Okay. We are going to read about this great personality now, बिस्मिल्लाह खान, और इसी के बारे में आपको सारा इस चैप्टर में बताया गया है, how he became a great musician. Now there are some pictures given to you in your book only. Do you know these people? What instruments do they play? Please try to find out the names of these pictures and the instruments, whatever they are having in their hands. This is your activity for today. After reading the chapter, when you'll be free from your class, I think this is the last period. Try to find out the names of these personalities, great musicians, and the instrument which they are having in their hand, and we'll discuss it in the next meeting. Now, coming to the next, think of the Shehnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. कि व्हेन यू थिंक ऑफ शहनाई, आप शहनाई के बारे में जब भी सोचते हो तो आपके माइंड में एक वेडिंग का सीन जो है या कोई ओकेजन, कोई ऐसा फंक्शन जो है वो माइंड में आता है. द नेक्स्ट वुड बी प्रोबेबली उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. और सेकंड आइडिया आपके माइंड में प्रोबेबली क्या आएगा, शायद क्या आएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, who was the master of the Shehnai player. He was a great master, great musician in the field of Shehnai Vadan. Playing this instrument, आपने उसको बहुत बार टीवी के ऊपर या ऐसा सुना होगा या इसका नाम भी सुना होगा. We are going to get the knowledge about his life and how he became a great musician. And again, the idea or the theme conveyed in this part of the story is the same as we discussed in the first part. What it tells us about the achievements, it talks about the achievements of these great personalities despite the challenges and hurdles in their paths. ये पार्ट 2 जो है ये भी हमें ऐसी ही एक आइडिया दे रहा है कि किस तरीके से उस आदमी ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हुए इस ग्रेट हाइट को अचीव करा, हाउ ही रीच टू दिस ग्रेट हाइट and achieved success in this field of music. So this chapter is about Bharat Ratan Ustad Bismillah Khan. He got Bharat Ratan award, and his love for the musical instruments Shehnai. The musical instrument, which was earlier known with the name of pungi, with its unpleasant shrill sound, was modified and it was played in the temples and at homes on auspicious occasions. But Bismillah Khan, Ustad Bismillah Khan, took it to the highest level and made it an instrument that could hold its own place in any classical recital. Bismillah Khan took this Shehnai Vadan to a great height. Clear? So let's read what is given to us about this great personality. Emperor Aurangzeb
banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. कि पुराने टाइम में क्या था, एंशियंट टाइम्स में शहनाई वादन की तरह ही एक इंस्ट्रूमेंट, शहनाई वादन की तरह ही एक इंस्ट्रूमेंट होता था पुंगी, जो कि रॉयल फैमिलीज में, रॉयल रेजिडेंस में, राजा महाराजाओं के दरबार में बजाया जाता था. एंड व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, मुगल बादशाह थे एम्परर औरंगजेब, और उन्होंने क्या किया कि जो इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी, उसको रॉयल रेजिडेंस में उसके ऊपर बैन लगा दिया कि ये वहां पर नहीं बजाया गया है, रोक लगा दी उसके ऊपर. इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. क्या रीजन दिया गया? फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, कि इसकी जो साउंड थी वो अनप्लेजेंट थी, अच्छी नहीं लगती थी कानों को, बहुत जैसे ना चीखने की आवाजें, श्रिलिंग साउंड थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. और पुंगी जो था वो क्या बन गया? एक जेनरिक नेम बन गया, अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज ए होल, कि एक पूरे ग्रुप को या एक क्लास को नाम दे दिया गया. फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, रीडेड मीन्स विंड इंस्ट्रूमेंट विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट एक्सेट्रा, जैसे बांस की या कुछ लकड़ी से बनी हुई जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, जैसे बांसुरी वगैरह होती है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लूट वगैरह होती हैं. तो ये नॉइज मेकर के नाम से इसको एक पुराना जेनरिक नेम जो होता है वो दिया गया. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. मतलब किसी ने ऐसा नहीं सोचा था. सी द यूज ऑफ वर्ड फ्यू, आपने डिटर्मिनर्स करे थे. ओनली फ्यू, जब ए और द हम नहीं लगाते तो इट गिव्स अ नेगेटिव सेंस, कि नाम मात्र, नंबर. तो क्या कहा जा रहा है कि फ्यू हैड थॉट, मतलब किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो फिर से कभी दोबारा रिवाइव होगा, फिर से दोबारा स्टार्ट होगा कभी भी. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. Yes, then there was a barber. बार्बर समझते हो, नाई होते हैं जो बाल काटने वाले. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस. कि एक बार्बर था जो कि म्यूजिशियंस की फैमिली, प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली को बिलोंग करता था. हु यूज्ड टू गो टू द रॉयल पैलेस. ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी. उसने क्या डिसाइड करा कि वो इस पुंगी की जो म्यूजिक की क्वालिटी थी, टोन थी, उसको इम्प्रूव करेगा. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने क्या किया? उसने एक पाइप ली विद अ नेचुरल हॉलो स्टम, खाली पाइप जैसे होती थी, बीच में से खाली हॉलो, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि पुंगी से लंबी थी और ब्रॉड थी, बड़ी थी साइज में. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उसने क्या किया? उस पाइप के ऊपर उसने 7 होल्स किए, छेद किए 7. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. कि जब उन 7 होल्स के बाद उसने इसके ऊपर प्ले करना शुरू किया, तो क्लोजिंग और ओपनिंग के ऊपर, उसके ऊपर उंगली रख के, हाथ रखकर वो छेद को बंद करते और खोलते बीच बीच में, जैसे आपने कभी बांसुरी बजाते हुए देखा होगा किसी को, म्यूजिशियन को. तो जैसे वो बजाते हैं बीच में अपने हाथ के साथ, कभी वो छेद को बंद कर देते हैं, होल्स को, कभी वो उनको खोल देते हैं. तो इस तरीके से जब उसने उस लॉन्ग और ब्रॉड पुंगी जो कि उसने पाइप ली थी उसको प्ले करना शुरू किया, क्लोज एंड ओपन करते हुए उन होल्स को, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. तो उसने क्या नोट किया
कि बहुत सॉफ्ट और मेलोडियस म्यूजिक, आंखों को कानों को अच्छा लगने वाला, सुनने में अच्छा लगने वाला जो म्यूजिक था, दैट वाज प्रोड्यूस्ड। जबकि पहले क्या कहा जाता था कि पुंगी की जो साउंड थी दैट वाज श्रिलिंग, अनप्लेजेंट। लेकिन अब उस बार्बर ने जब एक लॉन्ग और ब्रॉड पाइप लेकर उसमें छेद करके, होल्स करके उसको प्ले करा, क्लोजिंग और ओपनिंग द होल्स, अ वेरी सॉफ्ट एंड मेलोडियस म्यूजिक was produced. He played the instrument before the royalty, कि उसने राज दरबार में राजा और उसके जो मंत्री वगैरह थे सबके सामने, उनके सामने वो इंस्ट्रूमेंट को प्ले करा, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सारे जो थे वो बहुत खुश हुए। एवरी वाज इम्प्रेस्ड। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी had to be given a new name, and this instrument, which was now totally different from pungi, it was to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nut, क्योंकि जैसे कि स्टोरी बताई जा रही है कि सबसे पहले ये शाह के चैम्बर में, मतलब राज दरबार में प्ले किया गया, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और एक नाई के द्वारा, बार्बर के द्वारा प्ले किया गया। इसलिए कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रख दिया गया, शहनाई। मतलब शाह के चैम्बर्स, शहनशाह जैसे बोलते थे राजा को, और एक नाई के द्वारा किया गया, और इन दोनों को मिलाकर ये वर्ड बन गया शहनाई। इस तरीके से जो पुंगी थी उसने एक नया रूप ले लिया, एंड दैट वाज नेम्ड एज शहनाई। क्लियर? You can see the pictures given to you in the book about pungi and shehnai. शायद आपने ये पुराना इंस्ट्रूमेंट जो है पुंगी, ये भी कहीं कभी देखा हो, लेकिन शहनाई तो आपने ज़रूर देखी होगी टीवी वगैरह पे, जब भी म्यूजिशियंस प्ले कर रहे होते हैं, कोई ऑर्केस्ट्रा या कुछ, उसमें ज़रूर होती है ये। सो इन दिस वे द ओल्ड एंड ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट pungi was changed into shehnai. The sound of the shehnai began to be considered auspicious. और अब उस शहनाई की जो साउंड थी उसको बहुत ऑस्पिशियस, मीन्स बहुत पवित्र माना गया। जैसे ऑस्पिशियस होता है, जैसे हम किसी अच्छे काम के लिए अपने सेरेमनीज करती हैं, तो ऐसे लगता है कि वो हमारी अच्छी किस्मत बनेगी उसके साथ, तो दैट प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, अच्छी किस्मत आएगी उसके साथ, जब ऐसा म्यूजिक जो है वो ऑस्पिशियस ओकेजन्स के ऊपर, पवित्र मौकों पर, या अच्छे जो हमारे अच्छे धर्म से रिलेटेड या हमारी फैमिलीज के ट्रेडिशन से रिलेटेड कोई फंक्शन होता है, अच्छा समझते हैं हम, तो उसमें इसको बजाया जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स and is an indispensable component of any North Indian wedding. और इसी वजह से कहते हैं, इसी रीजन से ये आज तक भी टेम्पल्स में बजाया जाता है, प्ले किया जाता है शहनाई को, and it has become an indispensable component. Indispensable means very important, essential, without which a piece of work cannot be done. जिसके बिना हम सोचते हैं कि काम हमारा इनकम्प्लीट है, कि जब तक ये शहनाई वादन नहीं होता उतनी देर ये सोचा जाता है कि वो इवेंट या वो ओकेशन जो है वो इनकम्प्लीट है। So it is an indispensable component, means part of any North Indian wedding. कि North India में कोई भी wedding हो तो it is considered as very important part to play shehnai. In the past, the shehnai was part of Naubat, or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. और पुराने टाइम पे क्या था, पास्ट में क्या माना जाता था, इट इज द एंसेम्बल, दैट मीन्स कलेक्शन, ensemble pronounced as ensemble भी कह सकते हो, things here instruments considered as group, की 9 instruments which were present in the royal courts that have been collected in one, it was considered as, कि जैसे कि रॉयल फैमिली में जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको कलेक्ट कर दिया गया जैसे, और इस उससे कि ये इंस्ट्रूमेंट जो था वो बन गया। तो इस तरीके से क्या कहते थे, इट वॉज नोन एज द पार्ट ऑफ द नौबत, शहनाई वॉज द पार्ट ऑफ नौबत, नौबत हियर रेफर्स टू 9 इंस्ट्रूमेंट्स, और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ नॉन 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट द रॉयल कोर्ट्स। रॉयल कोर्ट्स में जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते थे दैट वर कलेक्टेड इन दिस वन। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और स्टार्टिंग में
ये सिर्फ टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही बजाया जाता था शहनाई को. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. लेकिन उसके बाद ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्रेडिट जाता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को, शहनाई को बजाने का, कि क्लासिकल स्टेज के ऊपर इसको लाने का. That the credit goes to Ustad Bismillah Khan for bringing this instrument onto the classical stage. You understand what are classical stage? कि जहाँ पर म्यूजिकल कंसर्ट्स होते हैं, कोई इवेंट्स होते हैं म्यूजिक के ऊपर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के ऊपर, और ऑर्केस्ट्रा टीम या बहुत से लोग जो हैं वो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं. तो इस तरीके से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इस शहनाई वादन को क्लासिकल स्टेज के ऊपर लाने का बहुत बड़ा कदम जो था वो उठाया, और इस तरीके से ये शहनाई वादन जो है वो बहुत फेमस हो गया. अदरवाइज in the beginning it was only in the royal courts, then in the temples and in the weddings in the North India only that was used. Now we are told about Bismillah Khan's life in the next lines. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. Note down the name. In Bihar state, डुमरांव एरिया में एंशंट एस्टेट थी, एक एरिया था डुमरांव, जहां पर कि बिस्मिल्लाह खान व्हेन ही वाज ओनली 5 year old ही यूज्ड टू प्ले गिल्ली डंडा. गुल्ली डंडा खेलते हैं ना, छोटी एक लकड़ी के बने हुए ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे कि बच्चे खेला करते थे. आजकल आप लोगों ने ये बहुत कम देखा होगा, लेकिन पुराने टाइम में बहुत लोग खेलते थे. ओपन एरियाज में जाकर एक बड़ा सा डंडा लेते थे और छोटी सी गुल्ली होती थी जिसकी दोनों साइड से उसको कॉर्नर्स बना लेते थे और उसके ऊपर मारते थे, और इस तरीके से वो डिस्टेंस नापते थे कि कितनी दूर वो गिल्ली उनकी गई. तो वन डे व्हाट वाज हैपनिंग, as when he was 5 year old he was playing this game gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Cheta, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. Because he was a child of 5 years and he used to sing Bhojpuri Cheta, that is, in the Bhojpuri language, he used to sing in the temple. रेगुलरली ही यूज्ड टू गो टू नियर बाय टेम्पल. बिहारी जी टेम्पल था. गुल्ली डंडा खेलने के बाद वो क्या करते, वहां पर चले जाते, क्योंकि उनको वहां पर एट द एंड क्या मिलता था, डेली उनको एक बहुत बड़ा लड्डू जो था 1.25 kg का, 1.25 किलो वेट का लड्डू जो था, एक प्राइज में उसके जो महाराजा थे वहां के वो उसको दिया करते थे. because he was a small child, and in the greed of that laddu he used to go there and he used to sing in Bhojpuri. This happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratan. और ये घटना कब की है, कहते 80 years पुरानी घटना है, जबकि वो 5 साल के थे और वो भोजपुरी में चेता गाकर वहाँ बिहारी जी टेम्पल में प्राइज के फॉर्म में उनको एक लड्डू दिया जाता था. और दिस लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार, बहुत दूर तक इन्होंने अपनी यात्रा करी है, टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. ये यात्रा किस चीज की है, नॉट थ्रू कन्वेंस और व्हीकल यात्रा बात हो रही है, यात्रा है म्यूजिक की, कि कैसे उन्होंने अपनी म्यूजिक की ये यात्रा शुरू करी और आज वो इतने फेमस हो चुके हैं दैट ही हैज गॉट द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. एंड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ऑफ 5 years, तब उनको क्या अवार्ड मिलता था, एक लड्डू मिलता था 1.25 kg का, इन द टेम्पल बिहारी जी टेम्पल, व्हेन ही यूज्ड टू सिंग भोजपुरी चेता इन भोजपुरी. चेता इज द म्यूजिकल भजन टाइप जो था, रिलीजियस सॉन्ग ही यूज्ड टू सिंग देयर इन द टेम्पल. नाउ he was born on 21st March 1916. Note down the date of his birth, 21st March 1916. Bismillah Khan belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His family is also known for music, and he belongs to that great family, well-known family of the musicians from Bihar.
His grandfather, Rasool Baksh Khan, please note down the name. His grandfather, Rasool Baksh Khan, was the Shehnai was Nawaz of the Bhojpur King's Court. उसके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श निवाज खान, वो भी कहते भोजपुर राजा की कोर्ट में शहनाई निवाज थे, मतलब वहां पर वो शहनाई बजाया करते थे. हिज फादर पियंगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great Shehnai players. Not only the grandfather, his father was also a great Shehnai player, and other paternal ancestors. Paternal ancestors means जो उसके father के ancestors थे, जो भी उसकी family में दादा या परदादा, उनके आगे जो भी उनके grandparents थे, they all were great Shehnai players. So that means we can say that he had this Shehnai Vadan from his birth, from his family only. उसको फैमिली में ही ये, जिसको कहते हैं ना एक विरासत में मिली थी चीज, किस तरीके से he got this in inheritance from all of his ancestors, from his parents, his grandparents, and their great grandparents. The young boy took to music early in life. और इस लड़के ने, कहते यंग बॉय था, इसने अर्ली लाइफ में ही म्यूजिक जो था वो सीख लिया, एंड ही टर्न टू दिस फील्ड at the age of 3 when his father took him to his maternal uncle's house in Banaras, now वाराणसी, कि अब वो जगह जो है वो वाराणसी के नाम से जानी जाती है. अर्लियर इट वाज नोन एज बनारस. At the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, कि इसके मदर जब उसको मैटरनल हाउस, उसके नान के मदर के जो रिलेशन में थे उसके अंकल के घर, मीन्स उसके मामा जी के घर हो गया, कि लेकर गए एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस. बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड watching his uncle's practice the shehnai. So Bismillah got very much fascinated when he saw his uncle also doing practice of Shehnai. मतलब not only his father and grandfather, but इसके maternal uncle जो थे, that means मामा जी इसके, वो भी शहनाई की प्रैक्टिस कर रहे थे when he went there in Banaras along with his mother. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Shehnai. और वहां पर इन्होंने अपने अंकल के साथ फिर से टेम्पल में जाना शुरू कर दिया. अर्लियर ही यूज्ड टू प्ले in the Bhojpuri Cheta after in the temple in Bihariji temple, and now when he went to his maternal uncle and he saw that he was also doing practice for Shehnai, and he used to play Shehnai in Vishnu temple of Banaras, and his name was Ali Baksh. His uncle's name was Ali Baksh, and Bismillah also started accompanying him. उसके साथ उन्होंने भी टेम्पल जाना शुरू कर दिया, where his uncle Ali Baksh was employed to play Shehnai. Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. और होता क्या कि जब वो उस टेम्पल में जाते, विष्णु टेम्पल में, बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ, तो उनके अंकल जब शहनाई बजा रहे होते तो बिस्मिल्लाह खान ही kept on sitting there captivated, मतलब जैसे जकड़ा हुआ, बहुत ज्यादा fascinated, जैसे आता है ना कि एक चीज में आप पूरा रुझान के साथ, इंटरेस्ट के साथ खो जाते हो, तो इस तरीके से कैप्टिवेट होता है. अदरवाइज प्रिजन के लिए यूज किया जाता है कि उसमें जकड़े हुए वो कई घंटों तक वहां पर बैठे रहते और उस म्यूजिक को सुनते जो कि उनके अंकल बजा रहे होते शहनाई को. Slowly he started getting lessons in playing the instrument, और धीरे धीरे उन्होंने भी उस इंस्ट्रूमेंट में लेसन लेने शुरू कर दिए, and would sit practicing throughout the day, और सारा दिन प्रैक्टिस करते, continuous सारा दिन प्रैक्टिस करते. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maya and the banks of the Ganga become the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. And for many years, these
प्लेसेस बिकेम हिज फेवरेट प्लेसेस। बिस्मिल्लाह खान के लिए ये जो टेम्पल ऑफ बालाजी, मंगला मैया का टेम्पल, और गंगा के किनारे जो थे वो बहुत फेमस फेवरेट हॉन्ट्स, मतलब उनकी फेवरेट प्लेसेस बन गई जहां पर कि वो अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। यंग अप्रेंटाइज इज यूज्ड फॉर बिस्मिल्लाह खान की, ये यंग प्रैक्टिस करने वाला जो आदमी था, जो कि सीख रहा था, लर्न कर रहा था, ही स्टार्टेड डूइंग प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, एकांत में बैठकर इन तीनों जगह पर वो अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। कि हॉन्ट जो भी उनकी हंटिंग प्लेसेस थी, जब भी उनको ढूंढा जाता तो ही वॉज फाउंड ऑन दीज थ्री favorite places. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of Shehnai. See the new things that he discovered with the flowing water of गंगा, कि गंगा का जो फ्लोइंग वाटर था उसने इंस्पायर करा बिस्मिल्लाह खान को टू इन्वेंट रागाज। जो डिफरेंट रागाज हैं, म्यूजिक में डिफरेंट राग होते हैं, उनको इन्वेंट करने का क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। विद द फ्लोइंग वाटर, पानी, गंगा की लहरों के साथ, बहते हुए पानी के साथ इनको जो इंस्पिरेशन मिली, उससे इन्होंने नए राग्स जो थे म्यूजिक में इन्वेंट करे, जो कि पहले कहा जाता था इट इज बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, के शहनाई की रेंज में नहीं आते वो राग, लेकिन इन्होंने उसको भी कर दिखाया। सो द होल क्रेडिट goes to this great musician who started inventing these ragas with the flowing water of Ganga.